हाँ अंजलि, सीएम विंडो ऑफ हरियाणा रघुनाथ सिंह जी, ये अशोक जी हैं हमारे, इनको अवार्ड मिल रहा है। आप इधर आ जाओ, आप उस तरफ आओ, सब इस तरफ, ये आप लोग मान लो, एक मिनट। Congratulations, Ashok. Thank you very much. And this is the Lifetime Achievement Trophy for you from Almi TV. यस, देखिए सर, इधर देखिए। So, Ashok, I would like to ask a question from you that you have achieved this Lifetime Achievement Trophy for economic journalism. You have been an editor of PTI in economics. So, what is your views that your journey has been till now? Actually, to tell you the truth, I never wanted to be a journalist. I entered journalism by accident. I wanted to be a doctor, I wanted to be a surgeon, I wanted to be a cardiac surgeon. But somehow destiny pulled me into journalism. Mm-hmm. My father was a journalist, my uncle was a journalist, 3 of my uncles were journalists. So the family background pulled me into journalism. And even in my childhood, I used to make these small scrapbooks about cricketers and all that. I was obsessed with cricket. So that's how the journey started. And So, but you chose to be specializing in economics, like, you know, yeah, I started. which was not your subject to begin with, and then you. No, it is my subject to begin with because I have majored in economics. But I started with sports reporting because I had a love for sports. Then I realized that economics is my love, so I went into economic journalism. Very nice. And so, Almi TV Media Group is delighted to honor you with this Lifetime Achievement Award for excellence in journalism. Thank you so much. Welcome. How do you think is the future of media in India and globally? The future of media is, I would say that the dimensions of journalism has changed completely now with electronic journalism, this digital journalism and webs journalism, and there needs to be some kind of a control over social media also. So what I would say is, in our days, print journalism had its own code of ethics, and we were very, very responsible about what we used to print out, and then we had a style book to follow. We knew what were the libel laws and things like that. But today, the glamour of TV journalism has just overtaken people. People don't have basic experience in libel laws and things like that. They just come into journalism and they ask all kinds of questions which are very inconvenient to the person. They invade the privacy of the individual, which is not proper in journalism. So I think we need a code of ethics for journalism now today, because electronic journalism is very different from print journalism. Thank you so much. Enjoy yourself. Thank you. इधर देखिए सर। Just wait. परवेज साहब, आज आपको आलमी टीवी की तरफ से मीडिया एक्सीलेंस का अवार्ड मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और ये तो मिलना बहुत स्वाभाविक था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, कबीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे याद रखा, और ऐसे डिग्रीज के बीच त्रिलोक जी जहाँ पर हों वहाँ अगर हमें शामिल कर लें आप, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी, क्योंकि तो यहाँ पर सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही वरिष्ठ हैं और उनका बहुत नाम है और योगदान है। जी। और उसमें आपका उर्दू पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, एज अ प्ले राइट,
and as a writer, and the way you have also fought for journalists' rights, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण जी, जी। पहलू है. देखिए, अपनी लड़ाई जो होती है वो सबकी लड़ाई होती है दरअसल जी. में। तो आज का ज़माना तो बदल गया, अब तो इधर कुछ किया उधर नतीजे मिल जाते हैं। हमने जो सफ़र किया था वो अलग दुनिया थी, बिल्कुल जी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, वो कहीं पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। खून का पसीना पाँव तक लाना, माथे का पसीना, वो सच में होता था उस ज़माने में। वो हमने किया, लोग भी बहुत अच्छे थे। और जैसे मैंने अभी आपका शुक्रिया अदा किया है, तो मुझे तो 1000 लोगों का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हर कदम पर किसी न किसी ने हमारी मदद की है, इसलिए हम आगे बढ़े हैं। और मुझे तो आतिश लखनवी, हैदर आतिश का एक शेर शुरू से मुझे बहुत पसंद था, और बल्कि जिसने मेरी हौसला अफजाई भी की, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हज़ार हा शजर राह में सायादार हैं। बहुत खूबसूरत. तो आप जब घर से निकलते हैं तो सायादार पेड़ की तरह लोग आपको मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं हर कदम पर। जी जी. शर्त है बाहर निकलना। तो ऐसे हज़ारों शजर दरख्त सायादार हमें मिले, जिनकी वजह से आज हमारा सम्मान आप कर रहे हैं। जी कबीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जी। आपका भी परवेज साहब और बहुत असल बहुत में दो शुक्रिया. फील्ड हैं, एक राइटिंग का और एक जर्नलिज्म का, वो मैंने कभी मिक्सअप नहीं किया, और प्रिंट छोड़ने के बाद ही मैंने लिखना शुरू किया। जी. और मेरा इंटरेस्ट जानी साहब से थोड़ा टकराता है, क्योंकि थिएटर के ये भी लोग हैं, और मैंने 4 नाटक लिखे हैं। उसमें फैज़ पर है, आखिर जो उनकी 7 साल वो बनी थी, उसमें ऐवान गालिब ने कराया था। वो आपने माँ पे भी लिखा है. नावल मेरा है, वो ज़ाहिर है जब नावल होता है तो वो ज़्यादातर ख़ुद पे ही होता है और आसपास के माहौल पे होता है, और कैरेक्टर तो मोस्टली रियली होते हैं। आपको एक कहानी क्रिएट करनी होती है और जोड़ना होता है, तो उसमें मेरी माँ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी. आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ख़वातीन का रोल बहुत रहा है, माँ के रूप में, बहन के, खालाएँ, कज़िन, कॉलेज स्टूडेंट, जॉब में, और ये किरण जी जैसी ये आपकी भी बेटियां भी हैं. और ये बेटियाँ भी हैं, तो बहुत रहा है। तो मेरे आप नॉवेल में देखिए, उसमें ख़वातीन के कैरेक्टर बहुत हैं। जी. जी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके जी, लिए. जी। याद दिला रहा है कि अब आप इनसे Just wait. Yeah. सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आलमी टीवी मीडिया एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से आप सम्मानित हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं सर? इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, एंड कबीर साहब मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, और इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैं इस साल 50 साल कंप्लीट किया है जर्नलिज्म में। ओह, तो उसके लिए दोबारा से मुबारकबाद आपको। Thank you so much. और शुक्रिया। 50 साल का अनुभव आपके जर्नलिज्म का, तो एक बहुत बड़ा वक्फा होता है लाइक, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बदलाव आपने महसूस किया? बदलाव तो बहुत है, टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आया है कि हम लोग तो प्रिंट जर्नलिज्म में थे, तो उन दिनों में तो बहुत ही मुश्किल था जर्नलिज्म में। अगर कोई स्पेशल स्टोरी करवाना है तो लाइब्रेरी में बैठ के सारे फाइल निकालना है, डस्टी फाइल्स निकालना है, नोट्स निकालना है, नोट्स करना, तैयार करना है, एक दिन पूरा उसमें चल जाता है। फिर पर्सनालिटी जो इंटरव्यू करते हैं उस पर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उनका बैकग्राउंड समझते हैं, तो 2-3 दिन का प्रिपरेशन होता है। आजकल तो बहुत ही आसान हो जाता है, गूगल कर दो, उनके बारे में प्रोफाइल आ जाता है, गूगल कर दो, क्वेश्चंस भी आ जाता है, एंड देन यू कैन डिसाइड। तो टुडेस टेक्नोलॉजी मेक्स वर्क ईजियर। बट बिसाइड्स मेकिंग वर्क ईजियर में मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट बहुत होता है, हार्ड वर्क का जो पहले रहता था कि फील्ड पे जाके और रूबरू करके हम लोग जो इंटरव्यूज़ करते थे, तो अभी कितना डिफरेंस आपको लगता है? इस पे कॉपी पेस्ट में भी एक टेक्नोलॉजी होता है। नो जर्नलिस्ट राइटिंग ओरिजिनल स्टफ, मैं भी 90% ओरिजिनल नहीं हूँ, सो आई ऑल्सो डू कॉपी पेस्ट, मगर कॉपी पेस्ट में भी इंटेलिजेंट कॉपी पेस्टिंग होता है। खुद दिमाग लगा के हमारा एक आइडिया होता है कि ये जो इससे हम लिख रहे हैं किस तरह जाना चाहिए। तो पहले हम असिमुलेट करते हैं डेटा, पूरा गूगल का सर्च 1 घंटा 2 घंटा में वो सब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट से लेके एक फ़ाइल बनाते हैं, पूरा फाइल पढ़ते हैं, आधा 3 घंटा फाइल पढ़ते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं बोर्ड में मार्क कर लेते हैं, और अपना जो आइडियाज़ होता है जो हमने फॉर्म किया है सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में हम लिखते हैं। अब जब सपोर्ट चाहिए तो हम कॉपी पेस्ट जिसने किया है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मगर कॉपी पेस्ट जो करते हैं उसका सोर्सिंग करते हैं। अगर मैंने इंडिया टुडे से लिया ऐसे अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, अगर मैंने आउटलुक से लिया है तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू आउटलुक, सी वोटर का लेते हैं तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सी वोटर। थैंक्स अ लॉट सर।
This is the trophy for your lifetime achievement. Your absolutely remarkable role in the media, from Dinman to Bharat Times to Sunday Mail, and your literary contributions, and we in India are very proud of you, and we wish you a long and a happy life. बहुत अच्छा थैंक यू दीप जी, हार्दिक बधाई, आपको अवार्ड बहुत मिला है शुक्रिया, आपके बहुत शुक्रिया। काम के लिए। कैसा फील कर रहे हैं मैं आप? बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, और ख़ास तौर पर नीलम का, जिसको मैं पिछले 35 साल से जानता हूँ, और जिस तरीके से नीलम ने तरक्की की है, जिस तरीके से नीलम ने मेहनत किया है, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैम, कैसा लगता है जब कोई आपके काम की तारीफ करता है और आपकी तारीफ करता है? Deep ji has known me for so many years, and जब मैं टेलीविज़न न्यूज़ में बहुत स्टार स्टेटस रखती थी, तो दीप जी ने मेरे को संडे मेल के कवर पे डाला था, और आई वॉज लाइक गिवन 5 pages ऑफ संडे मेल magazine, and that was like really historic for me. It was a big achievement. He's very kind and very generous towards me, but you know, life in journalism is not as easy, परवीन, जैसे आप जानते हो, उसमें बहुत संघर्ष होता है। दीप जी ने भी बहुत संघर्ष करा, और इन्होंने अगेय जी के साथ काम करा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो आप इनसे उस अगेय जी के साथ जो इनके संबंध रहे हैं, और इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अब्दुल गफूर तक बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ इन्होंने इंटरव्यूज़ करे। आप इनके यात्रा के बारे में पूछिए। जी सर, कुछ बताना चाहेंगे मैं आप? सिर्फ पहले इनसे बारे में बताऊं कि जब हम लोग पत्रकारिता में थे, मैं 1966 से था, जब सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे जो संपादक थे दिनमान के। हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं, ना उस वक़्त गूगल था, ना उस वक़्त इंटरनेट था, ना उस वक़्त कंप्यूटर था। हमारा जो दौर था वो तो हैंड कंपोजिंग वाला था, जो शायद इन लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। नीलम जिस दौर में गुजरी थी वो पेस्टिंग वाला काम था। एम आई राइट? जी। तो इनको मैंने प्रिंट मीडिया में भी देखा, और इनको मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है दूरदर्शन, और जब मैं दूरदर्शन में प्रोग्राम करता था, तो उस वक्त मुझसे ये कहा जाता था कि देखिए, आप ठीक बोलिएगा, हम एडिटिंग में नहीं कर सकते। और नीलम जिस दौर में वहाँ गई, शायद एडिटिंग शुरू हो गई थी। जी, थोड़ा बहुत हो गई थी। तो वो दौर देखिए और आज का दौर देखिए। आपके पास मोबाइल नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग क्या काम करते थे कि UNI PTA की खबरें लेके, फिर हमारा कांटेक्ट जो होता था उसका हम काम करते हैं। आगे का एक सूत्रवाद था कि अपनी मेहनत आप कीजिए, एक छोटी मोटी लाइब्रेरी अपने घर बना के रखिए ताकि रेफरेंस बुक आप पढ़ो, और दूसरा, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग कीजिए, जिसमें नीलम ने कमाल कर दिया था। चाहे प्रिंट मीडिया रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो। एक कुदरत, मैं थोड़ा सा बना, क्यों मैं इनको बहुत बड़े होते देखा हूँ। कहाँ इस काम के मामले में वैसे ये बहुत बड़ी हैं, मुझसे उम्र में छोटी हैं, वैसे काम में बहुत बड़ी हैं। वेरी काइंड ऑफ दीप जी। एक बार हम लोग एक ही फ्लाइट से जा रहे थे, बॉम्बे, हाँ जी, बॉम्बे जा रहे थे हम लोग। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा नीलम जी कहाँ? बोले बम्बई। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, बोले मेरे पास प्रोजेक्ट है। मैंने कहा मैं संडे मेल का एडिटर हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो बोले कहाँ ठहर रहे हो? मैंने बताया, बोले हम नहीं मिल सकते। लौट के आया जब वापस, तो मैंने कहा नीलम जी कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मैंने कहा मैं तो सारे लोगों को खींचने गया था, बीइंग द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ दैट थिंग। तो ये बहुत अच्छे हम लोगों के हुए हैं मुलाकातें। अब जब मंटी हाउस चला गया, तब यहाँ पर क्या
उपग्रह भी शुरू हो गया था सैटेलाइट और इन्होंने जो समाचारों में कमाल किया हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में, तो हमें याद होता है कि एक हम ही नहीं मेहनत करते। ठीक है, उस वक्त हम जिस तरह के थे, अग्गी के साथ काम किया, मनोज श्याम जोशी हमारे कोलीग थे, श्रीकांत वर्मा भी हमारे कोलीग थे, मतलब जो संस्थाएं आप सोच सकते हैं वो दिनमान में सब लोग थे। हम लोगों ने साथ काम किया, लेकिन जब थोड़े से हम बड़े हुए, मतलब हमारी बड़ी, और ये जब ये आ गई समझिए 80s की बात, तो हम सोचते हमने कुछ नहीं काम किया जो इसने किया। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। Thank you so Sir, much. thanks a lot. Thank you so much. Yeah. And we pray और and we wish Praveen that आज Deepti आज has का a तो आपको long हर healthy आपका तो life हर which चीज़ he पक्की पकाई, blesses आज us का तो from. हर चीज़ पक्की पकाई मिल जाती है ना। उस वक्त का दौर देखिए जब वो कितनी एक स्टोरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसका पिताजी बताया करते थे, किरण साहब। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया, फिर से, बहुत-बहुत और आपकी धन्यवाद। लंबी ज़िंदगी के लिए हम लोग कामना करते हैं, और आलमी टीवी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया की तरफ से आपको बहुत बहुत गॉड शुक्रिया। ब्लेस यू। Thank you for coming, Deepti. We have with us Mr. Danish Iqbal. He is a name, a legendary name in the field of art and media. He is a theatre veteran. He's got 14 national awards, and in Urdu and in stage theatre, there is almost no one to match him now. And Danish sir, we are so happy to have you here for the Almi TV Excellence in Arts and Media Award, and Kabir Saab will honor you with that. थैंक यू। बहुत बहुत खुशी, जी, बहुत जी, अरे, सरत नवाज- आए तशरीफ नवाज- लाए हमारी जी, जी। दावत पे। और सर, मैडम, जी, सर, जी, मैडम, बोलो। थैंक यू, जी, थैंक यू। Danish sir, would like to ask from you जी, जी। that your role in media and in art and theatre, poetry, you are a very multifaceted personality. I think after El Qazi, I think your name is even beyond that now. And I mean, it is not an appreciation of you, but just a small tribute to the works that you have done. And it is not without a reason that you can get 14 national awards. There must be a lot of hard work and labor that you put Yeah, in exactly. to come to this stage. So would you like to share a bit of your journey with us? Sure. I mean, you referred, I mean, about Al-Qazi. So if Al-Qazi is Qutub Minar, then in that lawn, I mean, there's a little pieces of grasses. So, I mean, we are the grass, the ground people, the grassroots people. I mean, of course, we have been doing a lot of things, and the only important thing is that we keep on doing efforts, and we did a lot of efforts, and accomplishments are not exactly in that proportion. So, of course, I mean, you referred to 14 national awards. That is a distant memory. Every day is a new day, and every day, I mean, you have to reinvent yourself. And the recent lockdown, COVID lockdown, washed out everything. Now nobody remembers what you did in good old days. So you have to reinvent yourself. So every week, I mean, we try to do something. And theatre is passing through very difficult times, Yes, as you of know. course. So there are struggles, but still, I mean, we are trying and trying and trying. Let me quote फैज़ की एक नज़्म है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे. तो आई कैन मॉडिफाई लिटिल इन अवर कॉन्टेक्स्ट कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम इश्क को काम समझते हैं और काम से आशिकी करते हैं. हम जीते जी मसरूफ़ रहेंगे, कुछ इश्क करेंगे, कुछ काम करेंगे, और इस काम के आगे आता रहेगा और इस काम से उलझता रहेगा, लेकिन फिर भी हम करते जाएंगे जब तक ज़िंदा है. आप ये बताना चाहेंगे दानिश साहब? परवीर साहब आइए. जी 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 जी. दानिश साहब, आप बताना चाहेंगे कि आपका इतना ज़बरदस्त स्टेज कंट्रीब्यूशन रहा है एज एन एक्टर डायरेक्टर, तो उसमें से कुछ खास प्लेज जो आपके दिल को ज़्यादा भाते हैं और जो आप लोगों तक पहुंचाए आपने और पहुंचाना भी चाहते हैं? जी जी जी. देखिए, मैं सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्ले है, मैं दारा शिको उसका नाम लेना चाहूँगा, जो MS सत्यू साहब जो बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं गरम हवा के, उन्होंने डायरेक्ट किया था. और आप जानती हैं कि दारा शिको एक ऐसा करेक्टर था
जिसने दो अलग अलग स्ट्रीम्स को, दो ओशंस को, दो समंदरों को मिलाने की कोशिश की। जी। और जो उन्होंने काम किया वो बाद में गांधी जी ने किया और बाद में हमारे सारे रिफॉर्मर्स ने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनको कोई हीरो नहीं समझता है, जबकि वो आज़ाद भारत के मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े हीरो हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनका जो विज़न था वो बाद में गांधी जी और नेहरू जी और दूसरे लोगों की मदद से हम हिंदुस्तान में हम साकार कर पाए। तो दारा शिकोह एक ऐसा प्ले है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके अलावा अमृता, ए सबलाइम लव स्टोरी, द लव स्टोरी बिटवीन अमृता प्रीतम And Rose or and Sahil Ludhiani. Sahil Ludhiani, with the platonic one. I'm not talking about the practical one. I'm talking about the Right. platonic one. So that was a beautiful story which I think मैंने उनके पे 4 प्लेस किए हैं अभी तक। इसी तरह से साहिर पे मैंने बहुत से ड्रामे किए हैं, फैज़ पे बहुत से किए हैं, और अब अभी आजकल मैं फोक फॉर्म्स पे कर रहा हूँ और दास्तान गोई कर रहा हूँ। दास्तान महाभारत हमारी नई दास्तान है, जी। दास्तान अपने राम जी की। तो जो इंडिया की जो ट्रेडिशंस हैं और जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारी पोइट्री है, जो हमारा म्यूज़िक है, उसे अगली जनरेशन तक रीपैकेज करने का एक काम है जो किसी को करना है। तो ये काम हम So लोग we करने are की very कोशिश कर proud रहे हैं। of you, Danish Saab. And Kabir sir, would you like to बहुत- say बहुत something शुक्रिया, about बहुत Danish आपने- Iqbal साहब? तशरीफ़ ले आए और बड़ी मसरत हुई जी, और बहुत मोहब्बत। आपने इतनी इज्जत अफजाई की हम जी, लोगों और की। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस ज़माने से मैं इनको बहुत इज़्ज़त के साथ और बहुत काश मैं भी ऐसे काम कर सकूं, बात कर सकूं जैसे ये करती थी न्यूज़ में, न्यूज़ टेलीविज़न में। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये ट्रॉफ़ी मैंने नीलम जी से हासिल की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल मैं करना जी चाहूँगी ज़रूर। कि जहाँ दानिश इकबाल का नाम आता है वहाँ पे गालिब से जोड़ा जाता है, कैसा फील होता है सर? ये सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी, देखिए, गालिब ऐसा कौन इंसान है जो गालिब को पसंद ना करे? लेकिन गालिब गालिब हैं और हम लोग क्या 10% गालिब समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भी 10% गालिब समझ सकते हैं। तो गालिब का जो ग्रांजर है, जो उनकी डेप्थ है, हम लोग उसे छूने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ ड्रामे उन पे किए हैं, लिखे हैं, और अभी भी हम चाहते हैं कि डिजिटल फॉर्म्स में उनकी पोइट्री को थोड़ा सा इजी करके समझाया जा सके, लोगों तक रीपैकेज किया जा सके। तो रेख्ता की मदद से भी हम लोग ये कर रहे हैं, स्टेज की मदद से भी करते रहते हैं, और आजकल तो यूट्यूब है और नए फॉर्म्स हैं। तो ये एक ऐसा काम है। जी, आपको ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का भी काफी जी जी जी, सहायता मिली थी बिल्कुल इन बिल्कुल plays बिल्कुल को बिल्कुल popularize करने जी में। जी 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 क्योंकि जी। मैं वहाँ रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा जी, 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 जी। अट्रैक्शन है देखिए दूरदर्शन देखिए और देखिए AIR देखिए की तरफ। हमारे देश की जो कल्चरल हिस्ट्री है वो कभी भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के बगैर नहीं हो सकती, जी। क्योंकि जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे जब आज़ादी के बाद कुछ भी नहीं था। आप सोचिए, तो 25 साल तक रेडियो ने संभाला, जी। और उसके बाद जो अगले 25 साल थे वो टेलीविज़न ने संभाले। जी, जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर दूरदर्शन का जिक्र किए, बग़ैर ऑल इंडिया रेडियो का जिक्र किए, तो हमारी कल्चरल हिस्ट्री, हमारी आर्ट की हिस्ट्री, हमारे देश की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हो सकती। So, Dr. Kabir Siddiqui, on behalf of Almi TV, I, Praveen, and all our guests wish you a very happy Thank you. future Thank and you. a long and blessed life. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। ठीक है। आइए आइए सिंह साहब आइए। अशोक you also come here. इधर आइए। परवेज साहब आइए। सब लोग आ जाइए ना, मैम को इधर आप आइए ना आगे। उधर है सर। आप इधर आओ ना सर, पीछे आओ। चलिए इधर। ओके शॉट। सर ठीक है, कोई बात नहीं। सर हाँ सर। आइए कबीर सर। जी जी सर। जानी साहब आप आइए आइए आगे आइए आगे आइए। सर सर इधर देखिएगा सर। मैडम साहब, परवेज साहब आप भी आ जाइए, थोड़ा सा हाथ लगा। बस हाथ दे दिया। हाँ सर, सर उधर देखिए, उधर देखिए। हाँ चेहरा जरा से उधर। हाँ सर सर, हाँ वो एक मिनट गुलदस्ता भी है। जी जी। हाँ ये सब कुछ ऐसे ही रखिए। जी। परवेज सर आप थोड़ा सा सर Thank you, same here. एक मिनट दे दीजिए। हाँ मैडम जी
नरेंद्र जी उधर से भी ले लीजिए, उस साइड से भी ले लीजिए। सर उधर से मैंने एंगल से लिया है, पीछे से आ रहा है। नहीं हमारा आपसे आ रहा है सर। नहीं कटी वो साइड से ले लीजिए, वो कोने से ले लीजिए। सब आने सीट बदल लूं क्योंकि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वंडरफुल, ठीक है। उस कॉर्नर से भी ले लीजिए। बिल्कुल कॉर्नर से पीछे की तरफ। इधर आओ ना, इतने सालों बाद फोटो साथ आ रही है। अरे क्या सही बात। सर बोलिए सर जी। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. मुबारक, Thank you so बहुत much. बहुत So many Thank you so And, much. and using technologies of those times to bring out a beautiful docu-feature or Yes. news reporting Yes. is far more difficult than technology that is available today, and still what we get today is very substandard. Kabir sir, I'd like to tell you something that, I would like to tell you, Praveen, that there was one coverage that I did that was in extreme militancy in Kashmir. And there were two dreaded militants with the name of Hanif Beg and Bitta Karate. They were like really dreaded. And the government of India and Jammu Kashmir police wanted to knock them out. Finally, they arrested. And they said that, look, we have to send a Doordarshan team. I'm sorry. That we have to send a Doordarshan team. And someone has to interview them. And my boss and my friend, Harish Avasti, he deputed me to go to those very turbulent times to the jails. And those were also jails for militants. And we had two camera teams with us. We went to Srinagar. Girish Saxena Sahab, governor, former Raw chief, he was the governor of Jammu Kashmir. So we were obviously assisted by the Jammu Kashmir government. And DG Jammu Kashmir, JN Saxena, IPS, he accompanied us to those dens, right? And I interviewed Hanif Beg and Bitta Karate. And people were asking me, were you not scared? And I was not asking polished questions or parroted questions. I was trying to find out that why these young guys got into terrorism and militancy. And to me, every blood shed is red in color. Whether that is of a militant, whether that is of our army personnel, whether that is of our own people of Kashmir who have died in lakhs. And that story resulted in getting me the Ram Manohar Lohia Puraskar, and I was the first lady to get it. Wow, wow. So that is a huge memory to me till today. आइए परवेज साहब आइए, प्लीज आइए. हाँ पूछिए मौका कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मौका देती नहीं है ना। अब नीलम जी की तारीफ करना तो सूरज को चिराग दिखाना है, क्योंकि जब से हमने जब से दूरदर्शन की बात जब करते हैं तो नीलम जी के बगैर होती नहीं है वो। मेरा सवाल ये नहीं है कि आप इतनी आपकी जो इमेज है, बेबाक, फायर ब्रांड, ये वो सब आपने खुद ही बताया अभी, तो कोई ज़िंदगी में ऐसा लगता है रिग्रेट आपको कि जो आपको करना चाहिए था उस टाइम आपने नहीं कर पाई? जावेद साहब ऐसा है, परवेज साहब ऐसा है कि मतलब मेरा ये जो जर्नी रही है ना, जो बाहर से बहुत जलवे नज़र आते हैं, परंतु इंटरनली आई गॉट रियली बैडली इमोशनली डैमेज्ड बिकॉज आई हैड नो लाइफ ऑफ माई ओन. मेरे को अपने लिए समय नहीं मिलता था, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं मिलता था, मैं इतने दिन घर नहीं जा पाती थी काम के कारण. So there was and there is a huge vacuum in my life, and I don't mind it because हमें सबको, जैसे शिव भगवान ने जहर पिया था और वो नीलकंठ कहलाए थे, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो हमें करना पड़ता है. बट एज अ मदर आई फुलफिल माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई सन टू द कोर एंड द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट. उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे. और बाकी पर्सनल लाइफ में तो फिर आई वॉज सो यंग, I was alone. All the big shots used to try to trap me. I would never come into their net and they would become my enemies. You know? So वो एक emotional vacuum तो रह जाता है. पर मैंने फिर उसके साथ जीना सीख लिया. That helped me to become a very emotional person. और वैसे अगर आप ये कहना चाहेंगे कि मैं एक सूफी सन्यासी पत्रकार हूँ, तो वो बहुत मायने रखेगा.
और मैंने पत्रकारिता में सूफीज़म को अपनाया, पत्रकारिता में मैंने सैक्रिफाइस किया बहुत कुछ, और वो इसलिए कि वो मेरा जज्बा था। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ज़िंदगी में कई रोल प्ले किए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया आपने, एंकरिंग की, कैमरा लेके निकली, प्रिंट में लिखा, फिर काला कोट भी पहना जी, और अब ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं। हाँ। तो ये कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? जी, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद रोल है पोइटिस का, अच्छा, वो भी है जो मैं नाम भी कविता लिया। लिखती थी। अच्छा, अच्छा। और उसमें मैंने महिलाओं के स्वरूप के ऊपर एक कविता लिखी है, और जिसका नाम है मैं हूँ गंगा। कि आप भी कह रहे थे कि जितनी भी ख़वातीन आपके जीवन में आई, आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। मैं आगे हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो जो ये पीड़ा और जो मैं देखती थी अपने आसपास महिलाओं के साथ होते हुए भी, तो मुझे लगता था मैं इनके लिए कुछ करूं। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं हेल्पलेस होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, यू नो, बट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस एंड स्पेशली इन आवर कंट्री, हमारे देश में महिलाओं को इतना सशक्त नहीं किया जाता। जब मैं यूरोप में जाती थी, तो आप आज भी जानते हैं यूरोप की हेड्स हैं, जजेस हैं, एंड दे आर वेरी एम्पावर्ड, लॉज आर इन फेवर ऑफ वुमेन, यू नो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ डिवाइड, a feminist divide of man and a woman. I'm just talking of equality which is missing in our country. फिर मैंने ये जो कविता लिखी गंगा के स्वरूप के ऊपर, मैं हूँ महिला, मुझ पर है त्र्यंबकार वरदान, शिव की जटाओं से आई हूँ मैं, कौन रोकेगा वेग को मेरे। लोग सोचते हैं ना नीलम बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो गंगा का वेग तो कहाँ से आता था? वो तो अगर अपने आप से आ जाता तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाता। तो शिव ने वो गंगा के वेग को अपनी जटाओं में ले लिया कि पृथ्वी का विनाश ना हो। तो महिलाओं का जो अंतःकरण है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। फिर वो कहते हैं कि महिलाओं के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस उठ जाते हैं, अरे वो तो शी इज़ यू नो दिस दैट आई मीन इट्स वेरी ईजी टू टॉक अबाउट वुमेन लाइक दैट। तो फिर मैंने कहा कि आप गंगा में जाते ना गंगा जल लेने, और वो पी के पवित्र होते हैं। तो मैं कह रही हूँ मैं हूँ गंगा, मेरी पवित्रता की चिंता तुम मत करो, ले जाओ मुझे अपनी पवित्रता के लिए। वाह 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 वाह, ले जाओ मुझे अपनी पवित्रता के लिए। वेग मेरा रुक नहीं सकता, मेरा जो प्रवाह है ना, वेग मेरा वे रुक नहीं सकता, क्योंकि शिव की जटाओं से आई हूँ मैं। धारा मेरी धरा का अमृत है, धारा मेरा धरा का अमृत है, शीतल सुंदर कोमल। वाह वाह वाह। तो ये है गंगा, ये है महिला, और ये मैं हूँ। ये हमारी सीमा जी हैं, ये हमारी प्रवीण है, ये हमारी आज की सब बच्चियां हैं, और ये मैं महिलाओं के बारे में निकलवाई आपसे। जी आपने वो बात निकलवाई जो बहुत लोग नहीं निकलवा पाए। मैं और दूसरी बात में एक कंप्लेंट देना चाहता हूँ जी कि आपके मेरे बीच 11 साल पहले एक छोटी सी घटना हुई थी। हाँ जो जी, इलेक्शन की हाँ जी, प्रेस क्लब के इलेक्शंस। खूबी है नीलम जी की उस 11 साल उस छोटी सी घटना वैसे नीलम जी मुझे पकड़े रखा हुआ है, इतना सम्मान, इतना अफेक्शन। परवेज साहब, उसमें आप अपना तो नहीं बता रहे हैं कि जब आप चुनाव जीते थे और उस समय कुछ ऐसी धारा चल रही थी कि अप डाउन, एंड आई वाज द फर्स्ट लेडी, कबीर साहब, टू एवर डेयर टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अ प्रेस क्लब, विच इज लाइक यू नो, अरे हाँ, दैट इज लाइक अ डेन ऑफ मीडिया, यू नो। तो मैंने हिम्मत करी और परवेज साहब के खिलाफ मैं लड़ी, और परवेज साहब मुझे बोले कि आप जीतेंगी। मैं इनको बोलूँ नहीं, मैं चाहती हूँ आप जीतें, और वो इतना सौहार्द के एटमॉस्फेयर में हुआ और परवेज साहब जीते। फिर इन्होंने मेरे को अपनी जो इनकी प्लेज की बुक्स थी वो मेरे को गिफ्ट करी और मेरे को गाड़ी तक छोड़ने आए, और जो इनकी मेरे ऊपर इनायत रही उसको मैं कभी नहीं भूल पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी जी, आइए आ जाइए आ जाइए। अब आइए ना मैडम, अच्छा नहीं हुआ, सब आ जाइए जी, पूरा वीक होता है चलिए ड्यू रहा। ही इज माय हेल्पर बॉय, कबीर सर। थोड़ा आगे आइए ना, आप भी आइए। जी। कम नानी से भाई। थैंक यू भाई, बर्थडे में मुबारक जी इनको, आपको सबको। थैंक यू नैना, आपके आने के लिए और आपके आने के लिए बहुत मन खुश हो गया आपसे। थैंक यू। आप बैठिए, आइए। हाँ, मैं आपको और
जी आओ बैठो। प्रवीण कम हियर। दानिश सर आगे आइए। मैं आ गया जी। मैं हमेशा नीलम जी को शेरनी कहता हूँ, ये कई सालों से आपसे नहीं है। आप ये बताइए कि जो नया आप काम कर रहे हैं मानवाधिकारों के बारे में, जिसमें शोषित और दरिद्र और लोगों के लिए आप सब कर रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या योजना और क्या कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। दीप जी, आपने मानवाधिकार के बारे में मेरे से बात आरंभ करी है। तो मैं जो मेरा ये समय था पत्रकारिता का, तो मैं देखती थी कि ना ये पुलिस का जो दुराचार होता है एक आम व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कॉमन सिटीज़न है, और उनके ऊपर झूठे केस फाइल कर देना, उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करना। अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं किसी गलत बात के ऊपर तो आपको झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, आपके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो मैंने, आपको याद होगा 1993 में, in 1993 I filed a case on Commissioner of Police Delhi and one DCP of New Delhi because they had filed a false case on me. तो वो पूरे दिल्ली हाई कोर्ट का जो जस्टिस YK सबरवाल, जस्टिस PK बहारी एंड जस्टिस RL गुप्ता ने उस केस को क्वॉश करा था 1993 फॉर कैंसलेशन ऑफ अ फॉल्स FIR। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ये जो वकील लोग हैं ये इतना पैसा लेते हैं और आपको केसेस में फंसाते हैं और आपको केसेस लंबे चलते हैं, तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हुई हूँ, मैं खुद ही क्यों नहीं वकालत कर लेती। तो मैंने फिर LLB करी, विच इज़ आफ्टर अ गैप ऑफ 15 years ऑफ माई एकेडमिक कैरियर। और फिर मैंने जो गरीब, निर्बल, शोषित, जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं था, वो मैंने मानवाधिकार आयोग में वो केसेस को उठाया, उनको न्याय दिलवाया, और उसके लिए मेरे को मानवाधिकार अवार्ड्स भी मिले। परंतु वो जो अवार्ड्स हैं वो मैं उनको समर्पित करती हूँ जिन लोगों ने प्रशासन, पुलिस और स्टेट, द ऑटोक्रेसी एंड टेरर ऑफ द स्टेट, उसके खिलाफ जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई। आप जानते हैं अभी भी कितने लोग बिना कारण से जेलों में बंद हैं, है ना। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लाइक इंडिया। सो आपने जो मेरे से कहा कि मैं मानवाधिकार के क्षेत्र में कैसे आई, क्योंकि मैं उससे स्वयं पीड़ित हुई और फिर मैंने दूसरों की पीड़ा को समझने की कोशिश करी। तभी मेरे को पुलिस वाले बहुत मेरे से दूर रहते हैं। पुलिस वाले पहले ही कह देते हैं वो नीलम मैम आ रही है, तू संभाल लेना, हम जा रहे हैं। सो यू नो, अगर पुलिस वाले आपसे डरते हैं तो क्यों डरते हैं? इसलिए क्योंकि आप में सच की आवाज़, जिसके लिए आपने तो पूरा जीवन लगा दिया, और सच और न्याय के लिए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जो थे, ही वाज नोन एज यंग टर्क। तो उन्होंने, मैं उनकी बहुत मित्र थी क्योंकि उनके समय की मैं कवरेज करती थी दूरदर्शन में, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी भी बनाया, अपनी दोस्त भी बनाया, और उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। तो ये कारण है मेरा मानवाधिकार में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू दीप जी। डॉक्टर वैदिक आ गए। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, अभी हो रहा है, ये होता रहेगा सर। ये हो रहा है। अरे सर, आप एक मिनट फैल जाइए। जी 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 जी। ये आरबीटी के चेयरमैन। सिंह साहब सर साथ में हो जाएंगे सर। पहले पहले एक फोटो, जरा ग्रुप फोटो आ जाइए। आइए सर सर सर। हमारे फिरोज बख्श साहब हैं, ये चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। अच्छा, आप अपने मैं आपको जर्नलिस्ट है, ये बच रहा है हाथ से, आपको पहनना पड़ेगा। ये आ जाइए ना, मास्क लगाइए ना यार, मास्क चलिए मास्क। हाँ, इधर देखिए। अब आप साथ में आ जाइए। चलिए साथ ही हैं हम, कोई नहीं, we are in a How are you? और how are you? All well? कबीर भाई जी एक मिनट। थोड़ा साथ हो जाइए। कबीर साहब आप आगे आइए ना। सीमा, you also come. सर
Yes. बाद में एक एक दो करके भी शॉट्स लेंगे, 2-3 ना। एक थोड़ा सा जो डोंट माइंड, मैं अपने कैमरा से बॉदर यू फॉर अ सेकंड. हेलो. या जी. इधर देखिए. ठीक है. मैडम इधर देखिए. एक मिनट. जस्ट इधर देखिए. अरे मैडम भैया. आप भी. आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, हाँ सर, लो आप दे दीजिए. जी. Yes, we love you so much. जी मैम. जी. जी. आइए रही साहब, आइए जी, तशरीफ जी, लेकर. जी, 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 आप आगे आइए सर. जी. आइए आगे. हाँ, जी, जी, जी. आइए सर. आइए. हाँ ठीक है सर. हाँ सर. उधर देखिए. जी. हाँ, आज तिलोन जी को देखते तो बहुत तबीयत खुश हुई। और परवेज भाई के बारे में आपको पता नहीं? हाँ. वैदिक साहब. हाँ सर, वैदिक साहब. जी. हाँ. ये हमारे भाई भी हैं, दामाद भी हैं। Okay. इंदौर से. हाँ। जी. सर जी. जी सर, कैमरे की तरफ. सर, स्वामी जी. जी. सर. कहाँ है आजकल आप? स्वामी जी के लिए एक है मोमेंट. चाहिए एक मिनट. चलो हम ये भी पत्रकार वैदिक ले जी. चुके हैं यार. मैगजीन के. अरे कबीर साहब. वैसे ही बहुत देखो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ भी गए ना ऑलरेडी. भैया भैया. मैम थोड़ा इधर आ जाइए. इनके दोस्त सामने से पीछे से पीछे से कम आ जाते हैं. मैम आइए. आगे से सर अरे यही तो थोड़ा नीचे कर लीजिए. सर दिस इज सर. सर कबीर भाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thanks a lot, sir. It is an honor, sir, for all of us. Sir. It's very kind of you. I don't know. परवेज. Why I deserve this award? Thank you. वेंकट साहब से 2 मिनट बात करो. यस. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस वेंकट जी आपको, और अपने अनुभव के बारे में बताइए कुछ, जर्नी के बारे में. जर्नी के बारे में मेरी हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं अंग्रेज़ी में बोलना चाहता हूँ. या श्योर यू कैन. Well, I began my career in journalism with the Times of India in Ahmedabad in 1969. After studying journalism in Usmania University and winning a gold medal after topping the university. Then I spent 1 year in Ahmedabad and found like a big fish in a small pond. Nobody spoke English there, and I had to learn Gujarati to cover the assembly proceedings and even to talk to the chief minister and all that. Then I came to Delhi in 1969, and since then Delhi has been my home, except for 3 years which I spent in Bombay editing the Onlooker magazine during the emergency. Then I got a scholarship to go to London to work on the Sunday Times, one of the 10 greatest newspapers of the world. In 1975, I came back, and then I was invited by Onlooker people to become the magazine's editor. Then I went to Bombay and spent 3 years in Bombay. And while I was editing that magazine, and one day Arun Puri, editor of the India Today magazine, said, I want to come and see you, and can we have breakfast at the Oberoi? I said, okay. So then I went to see him, and he said, we just started this India Today magazine, and
we're looking for good people, competent people to work for us. Why don't you come and join us? So then I came to Delhi. This was in July 79. Within a few months, Charan Singh lost his job and we had elections, and that's when a couple of guys came to see me. And they said, we want to predict election results. And I said, how do you want to do that? Do you have any experience? They said, in 75 we conducted a poll and found out that the Congress party was going to lose elections in Old Delhi and all that. I said, but what was the sample? Only 500 people. I said, this is a big country and you have crores of voters, so that's not good enough. So then, do you have any ideas? They said, no, we don't have any ideas. I said, if you want to do this, go to the election commission, get hold of all the results of the Lok Sabha elections since 1952, feed them to a computer and see if any pattern emerges. If India is having peaceful elections, every 5 years the government changes and all that, there must be some method in this madness. So both these guys said, sir, do you know what you're talking about? I said, yes, I know exactly what I'm talking about. No, there is only one place where you have a huge computer which can do all this. They said, where is it? IIT. I said, go and hire it, we'll pay the rent and all that. Then anyway, they looked very nervous and not confident of themselves, and I said, I'll give you 1 week. Think about it. This is something nobody has done anywhere in the world. And if you guys can do it, great. Otherwise, too bad, no problem. 5 days later, they came and said, we can do it. And they are Pranay Roy and Ashok Lahiri. And then we conducted the opinion poll. Even before the opinion poll was conducted, I spent a week traveling with Mrs. Gandhi and came back and saying that she's coming back with a massive majority. Then, well, it's been a long, satisfying journey. I'm delighted that some of the guys whom I groomed are now top editors, and they include Raj Chengappa, Shekhar Gupta, T.N. Nainan, just to name a few. And I'm very happy having been a journalist, and I thank you guys. Yes, Ashok. And I was just doing a job and appreciated. I'm very happy. Wonderful. Thanks. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for speaking to us. अब मैं हम लोगों ने हमारा और नीलम जी के साथ जो है 6-7 साल से है, और गुरुगांव में हम लोगों ने जितना सिस्टम को सुधारा है और उसके लिए कितना हम लोगों ने किस तरह का प्रशासन से हम लोगों ने लड़ाई किया है। किस तरह हम लोगों ने प्रशासन से लड़ाई किया है। कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जिससे हमारी लड़ाई नहीं हुई, और खासकर पुलिस विभाग तो ऐसे था जैसे कुत्ता बिल्ली, रफ लैंग्वेज में। इस तरह की हम लोगों की जो है, कई लोगों का सस्पेंशन का नौबत ही आ गया। फिर उनके बाल बच्चों के तरफ से सिफारिश आया तो उनको बख्शा गया, लेकिन वो भी नौबत काफ़ी अफसरों पर डाला गया। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो वहाँ के गेस्ट हाउस कम पीजी जो होता है, वो समझिए कि जो ड्रग लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इस तरह का जो चल रहा था, और उसमें पूरी प्रशासन उसका सिस्टम में थी। उस सिस्टम को हम लोगों ने बड़ी धीरे धीरे करके जो है संघर्ष करते हुए, उसमें इनका सहयोग बहुत बड़ा था। ठीक है, मेरा भी उसमें रोल था,
लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा था। वो कहावत है कि मैं तिनका चरणों कहाँ पाऊँ, मैं तो तिनका हूँ, चरण कहाँ पाऊँगा, वो तो चरण दूर है और तिनका है। फिर भी इनका सहयोग लेकर के और उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक, वही चीज़ बाद में वहाँ के पब्लिक के अंदर जागृति पैदा हुई और प्रशासन ने, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उन सब को सील करना शुरू कर दिया जितने पीजी थे। ये हम लोगों का देन था, नहीं हमारा नहीं, इनका देन था। प्रभुनाथ सिंह जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और ख़ासकर हमारे जो सभी मेहमान हैं और हमारे जो श्रोता होंगे आलमी टीवी के, उनके लिए आप जो मैंने थोड़ा सा कार्य बनारस की विधवाओं के लिए करा, अच्छा और वो मैं उसके तो बारे में 2 लाइन बोलिए, ज़्यादा नहीं। वो तो मैं भूल गया था। जी जी। देखिए, जो सुलभ शौचालय के जो मालिक हैं पाठक जी, वो हमारे अच्छे दोस्त में आते हैं। इनसे परिचय के पहले उनके साथ जो 2 जगह, बनारस और यहाँ पर मथुरा वृंदावन में, जो महिलाओं का, विधवा, खासकर विधवा महिलाओं की इतना बुरी हालत आप यकीन नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद बोरी में भर करके लाश साइकिल के पीछे लाद करके जाता था। कट्टा होती है ना बोरी, मरने के बाद उनको बोरी में भर दी जाती थी और साइकिल के पीछे कैरियर होता है ना, उसमें बांध करके और उनको गंगा में फेंकने के लिए ले जाता था। तो उस पर इन्होंने जितना काम किया, चूँकि हमारे वो मित्र थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस तरह के एक लेडीज है जो हमारा साथ देती है और इस संघर्ष में हमारे साथ रहती है। और इन्होंने बनारस में इतना काम किया इस, और धीरे धीरे करके जो है बाद में उसको का परिवर्तन हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। और वो लेडी कैसे मरती थी, भूखे। उनको एक मुट्ठी चावल दी जाती थी, एक मुट्ठी, एक मुट्ठी, दिन भर में एक मुट्ठी चावल। 10 लेडीज हो गई, 10 मुट्ठी चावल गिन करके पकाओ और खाओ। दवा और कपड़े तो बाहर की चीज़ें छोड़िए, जो दे दिया ठीक है। और इस तरह करके जो है उनकी जो है अंत होती थी, और अंत का बता दिया कि बोरी में भर के जाता था। तो उसमें इन्होंने इतना बड़ा काम किया, जो मैं तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। मेरे साथ है वेद प्रताप वैदिक जी, और मेरी डबल खुशी है सर मुझे कि एक तो हम इंदौर के हैं और आप पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरा बहुत खुशकिस्मती है कि आज मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ आलमी टीवी की तरफ से। और सबसे पहले मुबारकबाद आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। तो कैसा लग रहा है सर? बहुत शुक्रिया। मैं तो आज ये नीलम जी का आग्रह था और कबीर जी का प्रेम था कि जिसकी वजह से आया। वैसे मैं ये अवार्ड सेरेमनीज़ में प्रायः शामिल होता नहीं हूँ और अवार्ड लेने में मेरा कोई ख़ास विश्वास भी नहीं है। फोन के बाद नीलिमा जी ने इतना अच्छा काम किया है कानून के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में कि मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए आज कार्यक्रम में। और आप सबको एक सीक्रेट रिवील कर देता हूँ आज मैं कि नीलम जी का कल जन्मदिन था, तो उसे हम सब लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपने बारे में बताऊं मैं, तो इतना ही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में मैंने कर दी थी। 1958 में मेरा पहला लेख छपा था नवभारत टाइम्स में, नई दुनिया में। इंदौर का जो नई दुनिया अखबार था उसके संपादक राहुल बारपुते जी और मेरा कहीं भाषण हुआ रात को। तो सुबह राहुल जी मेरे घर आ गए, साइकिल पे बैठे बैठे उन्होंने आवाज़ लगाई कि वो लड़के को भेजो इधर।
तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई वो राहुल जी आए हैं नीचे, बहुत बड़े संपादक हैं, तुमको बुला रहे हैं। कहे तुमने रात को जो भाषण दिया था वो लिख के दे दो। मैंने कहा मुझे तो लिखना आता ही नहीं है, उनको हम बाबा बोलते थे। बोले तुम आओ दफ्तर मेरे पास। तो पैदल चल के मैं उनके दफ्तर चला गया, उन्होंने कागज़ बढ़ाया, मैंने लिख के दे दिया, अखबार में छप गया। दूसरे दिन शहर में मैं जहाँ गया वहाँ हर आदमी मुझसे कहेगा अरे बच्चे तेरा लेख देखा, तेरा लेख देखा। मैंने कहा अरे यार कमाल हो गया, लेख छपने से ऐसा होता है क्या। बस उस दिन से फिर मुझे लगन लगी और बराबर लिखता गया और बरसों अभी भी रोज़ लिखता हूँ मैं। कोई दिन मेरी पत्नी का निधन हुआ 2 साल पहले, तो अस्पताल से खबर आई सुबह 8:30 बजे कि अभी उन्होंने आखिरी सांस ले ली है। मैंने तुरंत उसके 1 घंटे बाद लेख ख़त्म किया, लेख पूरा किया, फिर शमशान गए, अंत्येष्टि की। बराबर निरंतर अविरत चल रहा है। और मुझे यहाँ ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में मैं था, जहाँ वेंकट जी से नहीं JNU नहीं बना था तब। अच्छा। ये 1965 की बात है। मैं PhD कर रहा था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया कि मैं इंदौर में छात्र नेता था, कई बार मैं जेल गया, कई बार मैंने आंदोलन किए। मेरे साथ के लड़के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, वहाँ मंत्री बने मध्य प्रदेश में, सब मेरे साथ ही थे, मैं उनका नेता हुआ करता था। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ दिल्ली के बहुत सारे नेता मुझे जानते थे, मोरारजी देसाई, इंदिरा जी, कृष्ण मेनन, सब जानते थे। तो मैं यहाँ सप्रू हाउस हॉस्टल में प्रेसिडेंट बन गया, जहाँ वेंकट जी आया करते थे। तो उसके उद्घाटन के लिए बुलाया मैंने। मोरारजी भाई कहने लगे तुम इंदौर में हिंदी बोलते थे, यहाँ तो तुम अंग्रेज़ बने हुए हो। मैं 3 पीस सूट पहना करता था। कहने लगे अंग्रेज़ी बोलते हो। मैंने कहा मैं रूसी भी बोलता हूँ, जर्मन भी बोलता हूँ, फारसी भी बोलता हूँ, कई विदेशी भाषाएँ सीखी। क्या बात है। बोले ये बताओ हिंदी बोलूँ कि अंग्रेज़ी में। मैंने कहा भाई जी हिंदी में बोलिए आप, या गुजराती में बोलिए, मैं अनुवाद कर दूँगा। उन्होंने हिंदी में बोला और झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे डायरेक्टर MS राजन साहब ने कहा कि ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, JNU नहीं बना था तब तक, बोले इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोलो। मुरारजी का नहीं मैं हिंदी में बोलूँगा। झगड़ा खड़ा हो गया। मैं अध्यक्ष था, तो मैंने कहा यहाँ जिसको भाषण सुनना है वो बैठे, वरना सब जा सकते हैं। तो राजन साहब चुप हो गए। दूसरे दिन उन्होंने मेरी फेलोशिप रोक दी। तीसरे दिन मुझे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से निकाल दिया है। पार्लियामेंट बंद हो गई। पार्लियामेंट में इतना हल्ला मचा, डॉक्टर लोहिया, आचार्य कृपलानी, हिरन मुखर्जी, मधुलिमा, अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोग भिड़ गए। सरदार हुकुम सिंह स्पीकर थे, उन्होंने पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया। इंदिरा गांधी बहुत परेशान हुई। इंदिरा जी मिलने आई पंडित हृदयनाथ कुंजरू से सप्रू हाउस में, वो उनके चचा लगते थे रिश्ते में। तो कुंजरू साहब ने उनको बहुत डांट लगाई, कहा तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर हो, ये लड़का इतना तंग कर रहा है हमको, बदनामी हो रही सारे हिंदुस्तान में। इंदिरा जी गई, उन्होंने ग्रांट जो थी 12 लाख रुपए साल की, वो बंद कर दी। इंदिरा जी ने ग्रांट बंद की स्कूल की, और स्कूल के होश फाख्ता हो गए। सबको बुलाया गया गवर्निंग बॉडी को, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, कृष्ण मेनन भी थे, सारे लोग थे। उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला, मुझे वापस लिया, मुझे निकाल दिया था। फेलोशिप मुझे सबसे ऊंची फेलोशिप UGC की फेलोशिप सिर्फ मुझे मिलती थी और किसी लड़के को नहीं मिलती थी। वो मेरी रेस्टोर की। साल भर मुझे निकाले रखा। साल भर में कई बार पार्लियामेंट बंद हुई। और तिलोक दीप जी तो इन्होंने देखा है, दिनमान में मेरे बारे में खूब लिखा है। हाँ, रघुवीर साहब जी, रघुवीर साहब जी, सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना, वात्स्यायन जी मेरे बारे में खूब लिखते थे। सारे हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में खूब। दिनमान ने पूरा काम किया था, दिनमान ने खूब कवर किया और पूरा सपोर्ट किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदुस्तान के और अखबारों वैसे में मैं थोड़ा सा वैदिक जी के बारे में कहूँगी। दीप जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता हैगा कि ਜਿਹੜਾ PTI ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, PTI। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੈਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ ਜੀ ਦੇ PTI ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ जी ਦਾ। वो हमारे उनी कृष्णन जी कहते थे, जनरल मैनेजर, कि भाषा इज़ ए न्यूज़ एजेंसी। आप PTI इज़ ए न्यूज़ एजेंसी, भाषा इज़ ए क्वालिटी एजेंसी। वो हिंदी की मूल खबरों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाते पहली बार ही हुआ। और ये होता था कि संसद में कई बार कई सांसदों ने भाषा की खबरों की, और वो क्रेडिट मुझे नहीं है, हमारे संवाददाताओं को, हमारे साथ के काम करने वाले साथियों को। इतनी लगन से उन्होंने काम किया कि अंग्रेजी एजेंसी से हमने बेहतर काम करके दिखाया।
उसके पहले मुझे नवभारत टाइम्स का एडिटर बनाया। अक्षय कुमार जी जैन रिटायर हो उसके बाद नवभारत टाइम्स में हमने बहुत काम किया। दिनमान में लिखा, धर्मयुग में लिखा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखा, मतलब सैकड़ों अखबारों में। और अभी मेरे कॉलम करीब 200 अखबारों में रोज छपता है। तो परवीन जी ने तभी आपके लिए सही कहा कि हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह वेद प्रताप वैदिक और जी। 9 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है। गुरमुखी में भी रोज छपता है, उर्दू में भी रोज छपता है, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में मेरा आर्टिकल रोज छपता है। और वहाँ के अंग्रेज़ी और उर्दू अखबार उन आर्टिकल पर रिएक्ट भी करते हैं। और वैदिक जी, आपने पाकिस्तान का तो जो इंटरव्यू लिया उससे तो सब लोग हिल गए थे। उसका मैं नाम नहीं। एक और बात बताता हूँ। एक ये वैदिक जी हैं, तो क्या ना वो क्या हुसैन थे, मुशर्रफ हुसैन। हाँ, जनरल वो हाफिज सईद नहीं, जो जिसको वेजिटेरियन बना दिया था। ओ हाँ, ऐसे कई मेरे वो अपने क्या नाम, ऐसे मेरे बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। डॉक्टर मुबशर हसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फाइनेंस मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे। उनसे मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अभी पिछले साल इंतकाल हुआ उनका, अभी 8-10 महीने पहले, 93 साल की एज में। वो हमेशा यहाँ मेरे घर आते थे और मैं पाकिस्तान जाता था तो मैं मुबशर साहब के पास ही रहता था। वो क्या यूएई के जो शेख हैं, शेख नजीबुर रहमान, माफ़ कीजिए, शेख मुजीबुर रहमान, नहीं मुजीबुर रहमान तो यहाँ पर बांग्लादेश, नहीं, अच्छा दुबई तक है वो जो शेख नहयान मुबारक। शेख नहयान जब पहली बार मुझे खाना खाने बुलाए तो मैंने उनसे कहा कि शेख साहब मैं वेजिटेरियन हूँ। असल बात मुझसे एक गलती हुई, वहाँ भाषण हुआ मेरा, भाषण में मैंने कह दिया आई एम प्राउड ऑफ माई मुस्लिम्स, द इंडियन मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑन दिस अर्थ। मेरा ये बोलना था कि वो जो अरब वहाँ मुसलमान बैठे हुए थे वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि इस बुड्ढे का दिमाग ख़राब हो गया है। ये बोलता है कि अरब देश में बैठ के बोलता है कि माई मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑन दिस अर्थ। तो मैंने थोड़ा जस्टिफाई किया। मैंने कहा भाई बात यह है कि हम आपका जो अरब है उसको मोहम्मद साहब ने कहा है कि इट्स ए लैंड ऑफ डार्कनेस, जहालिया है, और उसको उन्होंने क्रांति लाए, रोशनी दी। और हमारा तो इंडिया है, भारत, भारत का मतलब ये लैंड ऑफ लाइट। तो हज़ारों साल का जो लाइट था हमारे मुसलमानों ने इनहेरिट किया, नेचुरली इनहेरिट किया। और जो क्रांतिकारी आइडियोलॉजी थी इस्लाम की वो अरब देशों से आई। तो वो दोनों मिलके मणिकांचन योग हो गया और वो इतना शानदार हमारा मुसलमान है कि दुनिया का कोई मुसलमान उसके बराबर नहीं है। शेख साहब ने मुझे खाने पे बुलाया। मुझे लगा कि अब ये मुझे डिपोर्ट करेंगे कि यहाँ अरब देश में बैठ के अरबों कह रहा तुम घटिया हो, हमारे लोग बेहतर हैं। लेकिन उन्होंने बुलाया, वेजिटेरियन खाना मेरे लिए बनवाया। और अब जब भी जाता हूँ पूरी उनकी जो मजलिस होती है बड़ी, उसमें वेजिटेरियन खाना ही परोसते हैं। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप मत खाइए, मैंने कहा आप खाइए, आपको जो खाना है आप खाइए। बोलते नहीं, आपका हम एहतराम करते हैं। तो ये मैंने देखा कि इन सारे मुल्कों में जहाँ भी जाता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो मेरे लिए खाना बनाती थी ना अपने हाथ से, करेले की सब्ज़ी और पता नहीं सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ ख़रीद के लाती थी और ख़ुद बनाती थी और कहती थी मैंने सब बर्तन साफ़ किए। तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ है इन सारे मुल्कों में जाके कि आप लोगों से अगर ठीक बर्ताव करें तो वो आपसे भी ज़्यादा अच्छा बर्ताव करेंगे। आप उनको प्रेम दो ना तो वो आपको और दुगना प्रेम देंगे। ये मैंने हाँ महसूस। जी, वो थोड़ा सा हाफिज सईद का जब आपने पूरा देश हिल गया और पत्रकारिता में काफी भूचाल आया। जैसे हाफिज सईद के वक्त देश हिला था ना, ऐसा ही 1965-66 में जब मैंने हिंदी में थीसिस लिखा था तब देश। और ये मालूम हमारा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU में क्यों गया? इसलिए गया कि उन्होंने कहा कि ये वैदिक की वजह से ये स्कूल अब ख़त्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने एड देना बंद कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो वहाँ फिर मेरा भाषण हुआ, कुंजरू साहब वहाँ विद्यमान थे। मैंने उस भाषण में कहा कि मैं ये मानता हूँ कि हमारे स्कूल को JNU के साथ मर्ज किया जाए। तो कुंजरू साहब तो मेरे ख़िलाफ़ थे बहुत। उस दिन मुझसे कहते हैं, बोले ये बच्चा स्कॉलर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों ये कहते हैं कि स्कूल को मर्ज किया जाए। उसी दिन फैसला हो गया, स्कूल को JNU में मर्ज किया गया। तो फिर अब इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। उनके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, क्या सवाल? वो दी थी उन्होंने वो हाफिज सईद वाला। हाफिज सईद का ऐसा हुआ कि मुझे सलमान खुर्शीद हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनके वालिद साहब से दोस्ती थी। असल बात
हाँ, तो सलमान बहुत प्यारे आदमी हैं। तो सलमान भाई ने फ़ोन किया मुझे कि वैदिक साहब हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, एक सेमिनार है, आप भी चलिए। फिर अय्यर का फ़ोन आ गया मुझे, मणिशंकर अय्यर भी हमारे बड़े दोस्त हैं। उनकी माता जी हरिद्वार में सन्यासिनी थी, वो मेरे पास रहा करती थी आके। तो दोनों ने फ़ोन किया, मैं चला गया। वो 10-12 लोग थे हम लोग। हम वहाँ गए लाहौर, तो जैसे ही खबर लगी बहुत से लोग मुझे लेने के लिए आ गए। लाहौर के गवर्नर मियाँ आमिर हैं, मैं उन्हीं के घर पे ठहरता हूँ आजकल। तो मियाँ आमिर ने अपनी कार भेज दी, मैं उसमें नहीं गया, मैं बस में चला गया इन सब के साथ। 3 दिन सेमिनार हो गया। ये लोग सब वापस, ज़्यादातर लोग वापस आ गए, 1-2 लोग वहाँ रह गए। तो मुझसे मियाँ आमिर ने कहा कि आप मियाँ नवाज़ से मिल के जाइए। तो फ़ोन किया तो मालूम पड़ा शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अभी मक्का मदीना गए हैं, आप रुक जाइए। तो ठीक है, मैं रुक गया। वहाँ क्या हुआ कि ये जो टेररिस्ट थे ना, इनको फ़ौज ने मारना शुरू कर दिया। तो 10,000 लोगों को मारा फ़ौज ने वहाँ की। तो वो लोग जब पाकिस्तान में मार पिटाई कर रहे थे तो नवाज़ शरीफ लौट के आए। तो वो लाहौर आए, मैं लाहौर में था मिलने के लिए, लेकिन उसी दिन वो दंगा हो गया, वहाँ हज़ारों लोग मारे गए। तो वो उसी वक्त एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट चले गए वहाँ फ़ोन ही नहीं मिलता था पेशावर में, जंगलों में। तो मुझे सरताज अजीज़ साहब ने, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी उनसे मेरी बात होती रहती है, अजीज़ साहब ने मुझे फ़ोन किया कि वैदिक साहब आप रुक जाइए, मियाँ साहब ने कहा है कि वो लौटेंगे, उनसे बात किए बिना आप जाएँ नहीं, क्योंकि आपके दोस्त नरेंद्र मोदी आपके वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो उनके साथ अच्छा। एक बात और बता दूं बीच में कि नवाज़ शरीफ यहाँ आ नहीं रहे थे नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पे। वो मैंने ही कहा था एक ताल कटोरा स्टेडियम की मीटिंग में कि सारे पड़ोसी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाइए, तब आउट होना चाहिए और आप प्रधानमंत्री बनोगे। तो नरेंद्र मोदी ने मेरे कहने से बुलाया सबको, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। सरताज अजीज़ साहब को मैंने फ़ोन किया कि मैं गारंटी लेता हूँ, मियाँ साहब को आप कहिए कि आएँ। तो ठीक है, वो आ गए, चले भी गए। उसके बाद हम लोग वहाँ गए थे तो सरताज अजीज़ ने मुझसे कहा कि आप वापस बिल्कुल नहीं जाएं, मियाँ साहब से मिल के जाएँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इस्लामाबाद गए वो, तो मैं इस्लामाबाद चला गया, मैं मिल के आया। दूसरे दिन मैंने अपना जर्नी के लिए टिकट बना लिया। तो मियाँ आमिर, जिनके यहाँ मैं ठहरता हूँ, गवर्नर थे लाहौर के, वो कहने लगे कि सारे जर्नलिस्ट को आज बुलाते हैं, एडिटर्स को बुला लिया उन्होंने। तो वहाँ रोज़ मेरा टीवी पे इंटरव्यू होता था। तो मुझे कुछ लड़कों ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि आपने कहा कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को एक हाथ से सलाम करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज कुछ ऐसा करे कि दोनों हाथ से उसको प्रणाम करे। बोले इसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वो आपके टेररिस्ट को मारती है वो तो अच्छा है, लेकिन जो टेररिस्ट हमको तंग करते हैं ज़रा उनको भी तो संभाले। अगर दोनों को संभाले तो मैं दोनों हाथ से प्रणाम करूँगा, डबल सलाम हो जाएगा। तो त्रिलोक जी, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे नहीं, इतने सुनिए। वरिष्ठ पत्रकार और हमारे संपादक वेद प्रताप वैदिक जी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इतना ज्ञान है, कि एक दिन ये हमारे भारत के विदेश मंत्री बने। अरे नहीं, विदेश मंत्री पद नहीं, सुनिए, मुझे विदेश मंत्री पद बहुत पहले ऑफर हो चुका है और मैंने कई बार विदेश मंत्री पद, राजदूत पद मैंने मना कर दिया है। यहाँ मैं सबके बीच में नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक बार किसी पार्टी के अध्यक्षा ने, मैं अमेरिका में था, वहाँ से फ़ोन करके मुझे उपराष्ट्रपति के लिए भी कहा, मैंने मना कर दिया। मैं अपने कॉलेज में भी कभी किसी पद पे नहीं रहा, कभी जीवन में मैं कोई पद लेने वाला हूँ नहीं। पैसे कमाने के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरे घर में बहुत बड़ा बिज़नेस है, दिल्ली के सबसे बड़े सेठ लोगों में मेरी बीवी और उनके वालिद का नाम था। इंदौर में भी हमारी बहुत करोड़ों अरबों की ज़मीनें हैं। मेरा 1 इंच भी कहीं 1 पैसा भी मेरे नाम नहीं है। मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, मैं कभी किसी पद पर रहने वाला नहीं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा ना कि पुरस्कार, आज तक मैंने एक भी पुरस्कार के लिए कभी एप्लीकेशन नहीं दिया, कभी इच्छा नहीं की, कभी कोशिश नहीं की। मैं अवार्ड सेरेमनीज़ में कभी नहीं जाता हूँ। मुख्यमंत्रियों ने मुझे कई अवार्ड दिए और घर भिजवा दिए, मैं ले लेता हूँ ताकि उनका अपमान ना हो। तो मेरे लिए कोई पद वद का महत्व नहीं है। मैं जीवन में बिल्कुल आनंद में रहा हूँ और आनंद में रहूँगा। वैदिक जी, सॉरी, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है। आपने कितनी सरकारें देखी, कई पॉलिटिशियंस का दौर देखा, आप तब के और आज के दौर को जब देख रहे हैं, आज की सरकारों को, तो
केंद्र सरकारों को, तो आपको क्या महसूस होता है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारें करीब करीब सभी एक जैसा बर्ताव करती हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे अफसोस ये कहते हुए होता है कि हिंदुस्तान की प्रेस, हिंदुस्तान के लोग इतना दब्बूपना क्यों दिखाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। मैं तो जो लिखता हूँ, जो मेरे लेख पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि मैं कितने कस के बात लिखता हूँ। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उसी पे सर मैं पूछना चाहूँगी कि कोई बाल बांका करना चाहे ना, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुझे जेल में डालना चाहे, जेल दर्जनों बार गया हूँ मैं, जेल भी जाऊँगा, मर भी सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। तो अब क्या सोचते हैं, मीडिया का रोल अब क्या हो चुका है? मीडिया दब्बू है, मीडिया दब्बू है। मीडिया को किसने रोका है? ठोको, तुमको जो कहना है कहो, जो लिखना है लिखो, देखिए कौन बोलता है। लेकिन लोग डरपोक हैं, उनके स्वार्थी लोग हैं। क्या वजह है नेताओं जो से ज़्यादा और दब रहे हैं? भाई वो डरते इसलिए हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपनी वाली चला रहे हैं, हर जगह लोगों को काम नहीं करने देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, या धमकी देते हैं। और दूसरे वो धमकी ना भी दें तो ये धमकी लेते हैं, ज़बरदस्ती डरे रहते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देश में जो आज़ाद रहना चाहता है उसकी आज़ादी को कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो दब्बू लोग हैं, मरियल लोग हैं, उनका आप क्या करेंगे? तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से मुबारकबाद आपको अवार्ड के लिए, और आलमी टीवी की तरफ से आपको एक बार फिर से शुक्रिया। तो ये थे वेद प्रताप वैदिक। दुनिया के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं और हमें गुरूर है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं, जब भी मिलते हैं, सबको सबसे पहले याद किया जाता है। वैदिक जी, आपका नाम बहुत सुना था, लेकिन बहुत भाग्य से आप मुझे आना आइए सर। नीलम जी की कृपा है, नहीं, हाँ, अच्छी सी बहाने आप सबको। हिंदुस्तान टाइम शी वाज इन रिपोर्टिंग। सर हाउ टाइम फ्लाइज। कैसे 2005 की बात है? So 8, 9, 10 I think that time। सर से तो मिलना होता रहता है फील्ड में। आपको याद है कुछ? हाँ, जयपुर में मेरा घर है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए आप भी ऑल्सो ज्वाइन। वंडरफुल आलमी टीवी। नरेंद्र जी आ जाइए, एक फोटो आ जाइए प्लीज। एक ही रहने एक ही रहने Always even number. So it's 4. Now blow it. वैदिक सर थोड़ा सारा हो जाए भाई, एक मिनट तो नीचे जाऊँ दिखा दें। हाँ बस विश यू मेनी मेनी मोर। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आइए सर, सर आइए। हैप्पी बर्थडे। आई से इधर करिए ना थोड़ा सा। एक मिनट। हाँ सर, सर हाँ इधर आइए। एक मिनट सर, जाइए भैया थोड़ा। एक मिनट मैम। अरे हाउ बिग द पीस यू वांट? गॉड ब्लेस यू। चलो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसी में से खिला दो, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। या श्योर। जी खिलाएंगे। ये ले लो। वैदिक सर सामने आ जाइए। वैदिक सर सामने आ जाइए। वैदिक सर सामने जाइए, थोड़ा सामने। Thank you everybody. सर एक और फोटो यही हो जाए, अवार्ड या अवार्ड लेके खड़े हो जाएंगे।
सर ठीक है सर अरे वो स्नैक्स है, स्नैक्स वगैरह ये किसी को भेज दें सर्व करने के लिए, मैं डाल के देती हूँ, सर्व करवा दूँ।